Hello students, last time we have seen the design of piston and example for the design of piston, right? Today we are going to see the design of connecting rod. Friends, this is the longest design in machine design, or we can say IC engine design component part. Okay, so first of all, function of component. So I am going with some speed. Excuse me please. Okay, so in this, first of all, we know the function of connecting rod, right? So what is the function of connecting rod? On the top side of connecting rod, it is small I, we can say small end, and bottom one is the big end. Okay, so here piston pin is there, gudgeon pin is there, and here we can say crank shaft, okay, crank pin is there. Okay, so in between there is a sunk, or we can say body. Okay, so this is about the construction of piston. Okay, now these are the different parts for the construction of piston. Then let us see some deeply, like small end, it is completely integral. This all kind of about its construction. We know the small end, big end, its working. Let us see the sunk or body. So the stresses in a sunk or body. The sunk or body of the connecting rod connects a small end and big end. Its taper shape, as we have seen, its taper shape from small end to the big end. It is continuously subjected to alternative compressive and tensile stress. Okay, while compression stroke, it is compressive stress, and in another stroke it is having a tensile stress. Now cross section of connecting rod. So mostly we have seen the I section in connecting rod, but generally we can use rectangular, circular, elliptical, tubular, then all kind of section that we can consider, or we can say we can assume for the connecting rod. Now cross section of connecting rod for the low speed engine. Okay, so usually for the low speed engine it is elliptical or rectangular. Okay, then for high speed engine it is I section, H section. Okay, now L by R ratio. What is L by R? Length to radius. What is length? This is the length of connecting rod, and R is the radius of crank shaft. Okay, radius of crank. Now what if the L by R ratio is shorter and L by R ratio is longer? So here you can see the shorter connecting rod, which reduce the overall height of the engine. Okay, so the engine become compact, but due to shortened length of connecting rod with respect to crank, the angularity which increase the side thrust. यहाँ पे जो piston जो होगा ना, piston से यहाँ पे स्मॉल एंड होगा, तो यहाँ पे जो सिलेंडर वॉल पे जो साइड थ्रस्ट लगेगा वो बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर L by R रेशियो शॉर्टर है तो. ठीक है, लेकिन उसके सामने जो इंजन होगा वो भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी. इन एडिशन टू यूज ग्रेटर एंगुलरिटी ऑफ कनेक्टिंग रोड, द लेंथ ऑफ द पिस्टन स्कर्ट हैज़ टू बी शॉर्ट. ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ जो है पिस्टन स्कर्ट की वो भी छोटी रखनी पड़ेगी. ओके, so as to contact between piston skirt and the body of connecting rod. Now what if the L by R ratio is longer? Then obviously the height of the engine become increase, so side thrust, but the side thrust reduction is there. Okay, in addition it's allowed to use the piston long skirts. However, long connecting rod increase the overall height that we have seen. But if you assume something here, then if the value of L by R ratio, common value is 4 to 5. Okay, this assumption you should know. The common value for L by R ratio is 4 to 5. Now for the high speed engine, L by R ratio is less than 4, and for low speed engine L by R ratio is greater than 5. Okay, so this assumption you should know. Now material. Here you can see different material used for the connecting rod. It should be have a high tensile strength,
high compressive strength, okay, so high fatigue strength, all of these characteristics must in the connecting rod material. So high ultimate tensile strength, you can see here 700 to 1500 Newton per mm square, okay. So load acting on the connecting rod. Now we are going into the major part of design, okay. So load acting on the connecting rod. So here whenever the spark occur, okay, and blast over here, then there is a gas force Fg which force the piston to move downward, okay. Now force due to the combined effect of gas pressure, inertia of reciprocating mass and friction at piston. नाउ बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जो तीन जो हमें यहाँ पे वेरियस लोड जो है वो यहाँ पे दी है. बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ कनेक्टिंग रोड, एंड थर्ड इज फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन एट द पिस्टन पिन एंड क्रैंक पिन बेरिंग. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों फिगर जो है आप अभी पॉज करके थोड़ा ड्रॉ कर दो, ठीक है, क्योंकि बाद में ये फिगर का यूज़ होने वाला है इक्वेशन में, तो फिर हम यहाँ पे शायद ना आ पाए तो वहाँ से आपको पता चल जाए. सो यहाँ पे Fg है, तो यहाँ पे ये जो है दिस इज़ अवर रेडियल फोर्स. ओके, दिस इज़ एक्सियल फोर्स एंड दिस इज़ रिजल्टेंट फोर्स. दिस इज़ द एंगल. ओके, यहाँ पे जो क्रैंक का जो एंगल है विद द वर्टिकल लाइन दैट इज़ फाई. ओके, एंड दिस इज़ द रेडियल फोर्स और वी कैन से गैस फोर्स. ओके, नाउ first is force due to the combined effect of gas pressure, inertia, reciprocating mass and friction at the piston. तो gas pressure कितना होगा, pi/4 d square into p. P that is the gas pressure at the given crank angle. Okay, so this is a basic equation you have to use every time and everywhere for the design of connecting rod. तो आप ये इक्वेशन को याद रखना है और बहुत सारी जगह ये यूज़ होगा. अब P है उसकी जगह हम P मैक्सिमम लिख सकते हैं. तो Fg इज़ द मैक्सिमम एट द क्रैंक एंगल थीटा 5 to 10 डिग्री. ठीक है, जब जो थीटा जो है 5 to 10 डिग्री होगा तब P इज इक्वल टू P मैक्स होगा. ठीक है, क्योंकि हमने वाल्व टाइमिंग डायग्राम में भी पढ़ा था कि जब स्पार्क होगा तो जब पिस्टन TDC से आगे आएगा तभी उसको धक्का लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम गैस प्रेशर विल बी आफ्टर 5 डिग्री टू 10 डिग्री ऑफ TDC. ओके, नाउ द इनर्शिया फोर्स. अब आप याद करो कि जो आपने बैलेंसिंग पढ़ा था उसमें आपने इनर्शिया फोर्स का ये इक्वेशन आपने देखा था, m⍵² cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन n. n0 इज द ऑब्लिक्विटी रेशियो L/r. ठीक है, ये इक्वेशन हमने देखा था. सो इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मास. अब रेसिप्रोकेटिंग मास यानी कि पिस्टन का जो वेट होता है उससे इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और यहाँ पे जो mr है, ठीक है, आप पॉज करके शांति से ये सब पढ़ सकते हो. ठीक है, ये सब नोटिफिकेशंस. और mr जो है दैट इज द टोटल रेसिप्रोकेटिंग मास, और वो कितना लेना है वो आपको एज्यूम करना है mp प्लस 1/3 mc. mp यानी कि मास ऑफ द पिस्टन, और वो आपको एज्यूम करना है ये. ठीक है, अगर दिया हो तो ठीक है, हम एक एग्जांपल करेंगे. तो फ्रेंड्स अभी ये वीडियो में, अभी ये लेक्चर में आपको जितना समझ में आए इतना देखो समझो. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल एक बार करोगे ये देख के तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि थियरी इतनी लंबी है ये. ओके, नाउ mp जो है वो आपको ये लेना है 1/3 mc. mc क्या है, मास ऑफ द कनेक्टिंग रोड. ठीक है, नाउ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ fi ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग मास वेरीज विद द एंगल थीटा एंड इट इज मैक्सिमम एट द क्रैंक एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, नाउ यहाँ पे दूसरा भी दिया है, फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन एट द पिस्टन. फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन एट पिस्टन. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, सो F इज इक्वल टू म्यू इंटू Rn. अब Rn जो है वो क्या होगा, सरकमफरेंस होगा, पाई डी इंटू BR. अब फ्रिक्शन एट द पिस्टन मतलब कि पिस्टन के अंदर जो रिंग होगी ये उसकी विड्थ है BR. ठीक है, सो BR एक्सियल विड्थ ऑफ द पिस्टन रिंग, Z इंटू PW. आपने ये इक्वेशन जो है वो पिस्टन डिज़ाइन में देखा होगा. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे FF जो है वो हम ये एज्यूम करते हैं. ठीक है, इतना सारा देने के बाद भी यहाँ पे आपको एज्यूम करना है. ठीक है, ओके, नाउ
रिजल्टेंट एंड कंबाइंड फोर्स कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये गैस प्रेशर है, ये इनर्शिया फोर्स है, किसकी कितनी इफेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब जब सपोज यहाँ पे अगर पूछते हैं कि डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रोड आपको करना है, तो ये सब इंडिविजुअली नहीं लिखना है आपको, ओवरऑल डिज़ाइन आपको करनी है। उसके बाद एक्सियल फोर्स ऑन कनेक्टिंग रोड एफ, ठीक है। तो एक्सियल फोर्स ऑन कनेक्टिंग रोड एफ, तो ये इक्वेशन जो है, जो मैंने आपको फिगर बताया था वहाँ से आया है, ठीक है। फिगर कौन सी, ये वाली फिगर, ठीक है। ये फाई है तो एफ है और यहाँ पे थीटा है, तो वो इक्वेशन जो है वो आपको वो ट्राइंगल से लेना है। एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस फाई, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एफ आर अपॉन कॉस फाई। तो यहाँ पे जो एफ है दैट इज द एक्सियल फोर्स और वी कैन से एक्सियल लोड ऑन कनेक्टिंग रोड, एफ आर अपॉन कॉस फाई। नाउ द मैक्सिमम एक्सियल फोर्स ऑन कनेक्टिंग रोड एफ मैक्स इज इक्वल टू, ये सब करके लास्ट में आपको यहाँ पे ही आना है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर पी मैक्स। ये हमारा पहला इक्वेशन था जो मैंने आपको बोला था, याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन था, वही फिर से यहाँ पे दिया है। बहुत सारे इक्वेशन रिपीट ही करते हैं, ये देखो यहाँ पे भी वही इक्वेशन आया है। नाउ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू इनर्शिया फोर्स ऑन कनेक्टिंग रोड। अब हमें बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन डेटा बुक आप खोलो, उसमें बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन है वो आपको डायरेक्ट मिलेगा, आपको वो याद रखना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये इसका बेंडिंग मोमेंट है तो ये यूनिफॉर्म वेरिंग लोड कंसीडर किया है। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है तो यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स और उसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया है, जैसे आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट जो है उसमें आप करते हो, ठीक है। 2L अपॉन 3 और L/3 ये पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये पूरी की पूरी प्रोसीजर आएगी, ठीक है। इस तरह से बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है आपको। तो फाइनली आप जब बेंडिंग मोमेंट फाइंड करोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये जो इक्वेशन आएगा उसको भी आप डिराइव करोगे, तो फाइनली आपको ये इक्वेशन मिलने वाला है। और ये इक्वेशन शायद डिज़ाइन डेटा बुक में भी दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन अभी आप देख लो और एग्जाम में भी आपको डिज़ाइन डेटा बुक साथ में ही रखना है। तो मेरी ये सलाह है कि आप ये इक्वेशन जो है आप देख सकते हो वहाँ पे डायरेक्टली, और ये इक्वेशन भी आगे काम आएगा। तो बेसिकली बेंडिंग मोमेंट का ये इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद समरी ऑफ लोड ऑन कनेक्टिंग रोड, ये अब पूरा समरी आएगा, अगेन वही। तो उसमें जो मैक्सिमम गैस फोर्स था वो यहाँ पे दिया हुआ है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर पी मैक्स। उसके बाद यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, उसको वो जीरो कब होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, एंड मैक्सिमम कब होगा तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 होगा। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है, या तो डिज़ाइन डेटा बुक में देख लेना है, ठीक है। नाउ द डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रोड बॉडी। अब जो कनेक्टिंग रोड जो है इतना लंबा है, ठीक है, अब उसमें बक्कल तो होगा ही होगा, ठीक है, बक्कल होगा यहाँ पे। बकलिंग आपको पता है, बीम्स एंड कॉलम्स में आप पढ़े हो, तो यहाँ पे उस पर रैंकाइन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सो क्रिपलिंग लोड FC इज इक्वल टू SYC AC अपॉन 1 प्लस अल्फा LE बाई K होल स्क्वायर। तो बीम्स एंड कॉलम्स में आपने सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके गाइज, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे क्रिपलिंग लोड जो है वो हमें फाइंड करना रहेगा ये इक्वेशन से, और ये इक्वेशन भी आपको दिया रहेगा, ठीक है। बहुत सारे एजम्पशन है यहाँ पे, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5L फॉर द बोथ हैंड फिक्स, बोथ हैंड हिंज, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख के ये आपको एज्यूम करना है और ये दोनों को कंपेयर करना है, मैक्सिमम फोर्स और इसको, ठीक है। और ये है NF, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इट इज ऑल्सो कम एज्यूम दैट 4 to 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस जो है, विपिंग स्ट्रेस जो है, उसका इक्वेशन यहाँ पे है सिग्मा BW इज इक्वल टू M मैक्स बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपॉन Z। और Z जो है क्रॉस सेक्शन वो दिया रहेगा आपको कि वो रेक्टेंगुलर है या आई सेक्शन है, उसके हिसाब से आपको Z दिया रहेगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब दो पार्ट और है जिसको हमें यहाँ पे उसके डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली स्मॉल एंड बिग एंड,
ये दोनों यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल एंड में आप देख सकते हो यहाँ पे डायमीटर ऑफ पिन, देन यहाँ पे इनर साइड एंड आउटर साइड DPO एंड DPI, ये तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं और L1 भी है यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे। तो DP पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, और DP कैसे फाइंड करोगे? तो लीवर का जो इक्वेशन था F max इज इक्वल टू LDPB। ओके, LDPB आपने अगर लीवर की डिज़ाइन की हो तो उससे हमें पहले DP फाइंड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में हम करेंगे, ठीक है। तो उससे हमें DPI मिल जाएगा, और DPI मिल जाने के बाद उसके बाद अगेन यहाँ पे इनर्शिया फोर्स, मैक्सिमम इनर्शिया फोर्स का इक्वेशन दिया है। देन टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस इन द कनेक्टिंग रोड I, वो भी यहाँ पे दिया है। तो ये इक्वेशन से अब हमें DPO मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो FI मैक्स यहाँ पे कैसे फाइंड होगा? तो ये इक्वेशन से फाइंड होगा। अब इतने सारे इक्वेशन है वो याद रखना इम्पॉसिबल है, तो आपको डिज़ाइन डेटा बुक साथ में रखना है और यहाँ पे देखते जाना है कि कितने कितने इक्वेशंस दिए हैं और आपको कितने याद रखने पड़ेंगे। बहुत कम याद रखने पड़ेंगे, लेकिन थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो अलाउबल स्ट्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आता है बिग एंड। तो बिग एंड में यहाँ पे DCP, DCI, DCO एंड LBC, तो यहाँ पे जो ये हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया था, ये इक्वेशन जो लीवर का है F max इज इक्वल टू LBC DCP इंटू PB, तो ये इक्वेशन जो है उससे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसमें भी एजम्पशन आपको LBC जो है वो एज्यूम करना है, ठीक है। तो PB भी आपको इस तरह से एज्यूम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एजम्पशन दिया हुआ है, कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से। एंड LBC भी यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है 1.0 to 1.5 DCP। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा एजम्पशन है, ठीक है। तो उससे आपको DCI मिल जाएगा। तो DCI इज इक्वल टू DCP इंटू 2 थिकनेस ऑफ द बेरिंग सेल। तो DCI मिल गया। उसके बाद यहाँ पे जो S है वो भी आपको फाइंड करना है। तो S आपको कैसे मिलेगा? तो सिग्मा BC इज इक्वल टू MBC अपॉन ZBC। तो जो बेंडिंग मोमेंट है फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा ना, तो यहाँ पे जो फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे सेंटर पे लोड लग रहा है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस होगा S/2। तो F/2 अपॉन इंटू S/2। तो इस तरह से यहाँ पे FI/2 S/2 लिया है। देन ZBC जो है यहाँ पे सीधा एज्यूम किया है सेक्शन मॉड्यूलस, ठीक है। देन यहाँ पे DCO जो है वो DCI प्लस 2 TBC एज्यूम किया है, या तो ये, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद FI मैक्स यहाँ पे फिर से फाइंड आउट किया है। क्यों फाइंड आउट किया है? तो ओके, तो ये तो हमारे पास है। तो ये इक्वेशन इसीलिए है कि हमें डायमीटर ऑफ द बोल्ट फाइंड आउट करना है DC। तो ये इक्वेशन जो है वो बोल्ट फॉर द बेरिंग एंड बेरिंग कैप, जो उसका बोल्ट आता है उसका कोर डायमीटर फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ किया है, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन जो है कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो 2 बार देख लीजिए ताकि इक्वेशन आपके दिमाग में बैठ जाए। सब इक्वेशन याद नहीं रखना है, लेकिन इक्वेशन को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन कहाँ पे अप्लाई करना है। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसमें सब इक्वेशन डायरेक्टली पुट आउट किए होंगे। आपको समझ जाना है कि कौन सा इक्वेशन कहाँ पे किस तरह से आया है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।